Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your English class for grade 6. This is a part A of the video reading. Now students, open your new Oxford Modern English for grade 6 page number 85. In a tunnel. टनल के अंदर. टनल क्या होती है कि पहाड़ों के अंदर से खोद के एक रास्ता सा बनाया होता है, इसके अंदर से ट्रेन या गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं, उसको बोलते हैं. Of course, you know what going into a tunnel is like. The engine gives a scream, and then suddenly the noise of the running, rattling train changes and grows different and much louder. Grown-up people pull up the windows and hold them by the strap. The railway's carriage really glows like night with lamps. Of course, unless you are in a slow local train, in which case lamps are not always provided. Then by the darkness outside the carriage window is torched by puffs of cloudy whiteness, and then you see a blue light on the walls of the tunnel, and the sound of moving train changes once more, and you are out in the good open air again. And grown up, let the straps go. The windows, all dim with the yellow breath of the tunnel, rattle down into their places, and you see once more the tip and the crash of the telegraph wires beside the line, and straight cut hawthorn hedges with the tiny baby trees going out of them every 30 yards. यकीनन आप जानते हो कि टनल के अंदर से गुजरना कैसा होता है. इंजन ने एक बहुत ऊंची सी चीज़, जैसे चीखने की आवाज़ होती है वैसे आवाज़ आई, और उसके बाद अचानक से ट्रेन के चलने की और उसके गड़गड़ाहट की जो आवाज़ है वो मुख्तलिफ होना शुरू होगी और पहले से ज़्यादा ऊंची होगी. जो बूढ़े लोग थे उन्होंने विंडोज़ जो हैं वो ऊपर चढ़ा ली और उनको चमड़े की पट्टा, इसको स्ट्रैप बोलते हैं, उसको पकड़ लिया. रेलवे जो कैरेज है वो एक रात में एक लैम्प की तरह जो है वो उसने एक अचानक से ग्लो करना शुरू कर दिया. लेकिन कह रहे हैं कि आप किसी लोकल ट्रेन में हो तो वहाँ पर आपको लैम्प जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जाते. और आस्ते आस्ते डार्कनेस जो है वो ख़त्म होने लगी, और जो उसकी जो टनल्स की वॉल हैं उसके आस्ता आस्ता उसके जैसे जैसे ट्रेन आगे चलती गई तो वो ख़त्म होना शुरू हो गई. एक ब्लू सी लाइट कॉर्नर पे नज़र आना शुरू होगी, और हम इस तरह जो है वो ट्रेन वापस टनल से बाहर निकल आई, और जो उसके गड़गड़ाहट की आवाज़ है वो पहले जितनी वापस चेंज होकर पहले जितनी हो गई. उसके बाद वो कह रहे हैं आपने दोबारा जो है वो टेलीग्राफ की जो वायर्स हैं वो देखना शुरू कर दी, जो और बाढ़ के साथ साथ छोटे छोटे जो दरख्त हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो गए, जो हर 30 यार्ड के बाद लगे हुए थे. All this of course is what a tunnel means when you are in a train, but everything is quite different when you walk into a tunnel on your own feet and tread on shifting, sliding stone and gravel on the path that curves downwards from the shining metals onto the wall. Then you see slimy oozy trickles of the water running down in the inside of the tunnel, and you notice that the bricks are not red or brown. They are as the tunnel's mouth, but dull, sticky, slicky green. Your voice when you speak is quite changed from what was outside in the sunshine, and it is a long time before the tunnel is quite dark. अब कह रहे हैं कि ट्रेन के अंदर तो आपको पता है कि टनल के अंदर से गुजरना कैसा होता है, लेकिन चल के टनल के अंदर जाना अपने पाँव से तो वो कैसा होता है. वहाँ पर स्लाइडिंग वाले स्टोन्स होते हैं, वहाँ पे मट्टी पड़ी होती है, और शाइनिंग मेटल जो होते हैं उससे नीचे वॉल के ऊपर मट्टी वगैरह पड़ी होती है. उसके बाद स्लाइमी जो होता है, चिपचिपा मादा जो होता है वो होता है वहाँ पर, और आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ की ब्रिक जो होती है रेड या ब्राउन नहीं होती हैं, बल्कि वहाँ पे स्ट्रिकी ग्रीन किस्म की होती हैं. और आपकी आवाज़ जो है जब आप बोलते हैं तो वो चेंज हो जाती है उस आवाज़ से, जब आप बाहर से सूरज की रोशनी में जो आवाज़ होती है उससे. इट वॉज नॉट येट क्वाइट डार्क इन अ टनल वैन Phyllis caught Robbie's skirt ripping out half a yard of gathers, but no one noticed this at the time. I want to go back, she said. I don't like it. It will pitch dark in a minute. I won't go into the dark. Don't care what you say. I won't. Don't be a silly cuckoo, said Peter. I have
have got a candle and a matches. And what's that? That was a low humming sound on the railway sound, a trembling of fire beside it. It's train, said Bobby. Miss Line, let me go back, cried Phyllis, struggling to get away from the hand by which Bobble held her. Don't so be coward, said Bobby. It's a quite safe. Stand back, come on, shouted Peter, who was a few yards ahead, quickly main hole. टनल के अंदर अब इतना अंधेरा नहीं था, लेकिन जब फिलिस ने बॉबी से स्कर्ट को तकरीबन हाफ यार्ड तक फाड़ दिया, लेकिन किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। वो उसको कह रही थी कि मुझे वापस जाना है, मुझे ये नहीं पसंद, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहती हो। वो कहते हैं कि बेवकूफ़ ना बनो। पीटर कहता है कि बेवकूफ़ ना बनो, मैं कैंडल और माचिस लेके आया हूँ। और ये क्या है? ये एक हल्की सी आवाज़ है हमिंग की। रेलवे लाइन के अंदर जो वायर्स होती हैं वो जब हिट होती है उसकी आवाज़ आती है। ये ऊंची से ऊंची होती जाती हैं। अगर आप इसे सुने, ये ट्रेन है। बॉबी ने कहा, विच लाइन, कौन सी लाइन, मुझे वापस जाने दो। फिलिस दोबारा चिल्लाई और बॉबी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी जो बॉबी ने पकड़ा हुआ था। बॉबी ने कहा कि बुज़दिल मत बनो, ये बहुत महफूज जगह है, यहीं खड़ी रहो। कम ऊंची बीटे जहाँ ऊँचे आवाज़ से चलाए, यहाँ आओ। और कुछ यार्ड्स के बाद यहाँ पर मेन हॉल आ जाता है। द रोर ऑफ एडवांसिंग ट्रेन वॉज नाउ लाउडर एंड द नॉइज यू हेयर यू व्हेन योर हेड इज अंडर द वाटर इज इन द bath and bath taps are running and you are kicking with your heels against the bath tin inside. But Peter had shouted for all he was worth, and Bobby heard him. He dragged Phyllis along the main hole. Phyllis, of course, stumbled over the wires and grazed both her legs. But they dragged her in, and the three stood dark in the damp arch recesses while the train roared louder and louder. It seemed as if it would deafen them, and in the distance they could see in the eyes of fire growing bigger and bigger every instant. It's a dragon. I always knew it. It takes its own shape in here in the dark, shouted Phyllis, but nobody heard her. You see, the train was shouting too, and its voice was bigger than hers. And now, with a rush and a roar and a rattle, a long dazzling flash of lighted carriage windows, a smell of smoke, and the blast of hot air, the train hurtled by and changing the jangling and echoing in the water roof of the tunnel. Phyllis and Bobby clung into each other. Even Peter caught hold of Bobby's arm in case she should be frightened, and he explained afterward. And now slowly and gradually the trail lights grew smaller and smaller, and so did the noise, until with the one last whiz and the train got itself out of the tunnel, and the silence settled again on its damp walls and dripping roof. अब ट्रेन की जो आवाज़ है वो ऊंची से ऊंची होना शुरू होगी। वो ऐसे लग रहा है जैसे आप वाटर का जो बात है वो अंदर लेटे हों, वो अंदर करके, और ऊपर से आवाज़ें आ रही हों, और आप अपने पाँव जो है वो बाथ की साइड के टिप में मारते हैं। पीटर जो है वो ऊंची आवाज़ से चलाया, लेकिन जितनी उसकी आवाज़ थी उतनी ऊंची आवाज़ से चलाया, और बॉबी ने उसे सुना। उसने फिलिस को जो है वो मेन हाउस के बिल्कुल उसके पास अपने पास खींच लिया, और जो फिलिस है वो उसकी जो तारें हैं उसके अंदर फंस गई, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको वहाँ से खींच लिया। अब ट्रेन की आवाज़ जो है वो और ऊंची से ऊंची हो गई थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे उनको बहरा कर देंगी, और उनका डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम रह गया था। वो लोग अपनी आंखों से जो आग जल रही थी और वो लाइट जो ज़्यादा और रोशन और थी उसको देख सकते थे। अब फिली जो है वो सिलाई कि मुझे पता था ये ड्रैगन ही है, और वो जो रोशनी में है अपनी शक्ल ऐसे कर लेता है, अंधेरे में अपनी शक्ल ऐसे कर रहा है। लेकिन फिलिस को कोई भी नहीं सुन सकता था, वो क्योंकि ट्रेन की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच सकी। उसके बाद जो है उसकी कैरेज की विंडो से उसकी रोशनी, और उसके बाद उसकी स्मोक की स्मेल, और एयर के अंदर एयर का हो ब्लास्ट जो ऊपर से हवा निकलती है, इनके इंजन की वो वाली आवाज़, और सब कुछ जो है वो बहुत ही खौफनाक मंजर बना रही थी। और जो ट्रेन का जो टनल के अंदर जो उसकी इकोइंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद फिलिस और बॉबी जो है वो उन्होंने एक दूसरे को जो है वो गले लगा लिया, और पीटर ने भी बॉबीज़ का जो है वो आम पकड़ लिया। बाद में उसने कहा कि बॉबी डरे ना, इस वजह से उसने पकड़ा। उसके बाद आस्ता आस्ता जो है उसकी आवाज़ कम होना शुरू होगी, और उसकी जो ट्रेन है की जो लाइट्स है वो भी छोटी से छोटी होना शुरू होगी, और दोबारा से
उसकी आवाज़ जो है टनल में अंधेरा हो गया, बिल्कुल खामोशी होगी और वॉल्स के ऊपर से जो पानी के टपकने की आवाज़ वापस आना शुरू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका 12th वीक की जो रीडिंग है उसका एंड। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका कॉपी वर्क। अल्लाह हाफिज़।